حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے ہی جو منتخب صحابہ تھے ان سے یہ نصیحتاً فرمایا تھا کہ میں نے اصحاب رسول میں عمر ابن خطاب سے اب افضل کسی کو نہ دیکھا، اس لیے تم سب اس کو اپنا امیر مقرر کر لو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان، آپ کی یہ نصیحت، وہ سارے صحابہ نے دل و جان سے قبول کر لی۔ یہ ایک ہی خلیفہ ہیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق بہت زیادہ رائیں اور بہت زیادہ جیسے الیکشن والے معاملات نہیں پیش آئے۔ جس دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، آپ کی تدفین ہوئی، اسی دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہو گئے۔ ایک ہی دن، اسی دن 22 جمادی الاخر کو ہی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ وہ حسین دور ہے جس دور کی روشنائی، جس دور کی سچائیاں پورے اکناف عالم میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے 17 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ تقریباً اصحاب عام الفیل کا جو واقعہ پیش آیا اس کے 17 سال بعد، بعض روایت میں کہ 13 سال بعد تھے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال بعد اگر جیسا پیدا ہوئے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ختم ہوا 2 سال 3 مہینے کچھ دن کے بعد، یعنی 3 سال کے آس پاس، اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا زمانہ 10 سال کا لگا۔ یہ خلافت فاروقی 10 سال تک چلی، ایک لمبا عرصہ خلافت کا آپ کو ملا ہے۔ اس اعتبار سے جب حضرت عمر کی وفات ہوئی تھی تو عین آپ کی عمر 63 سال کی ہی تھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے جب پردہ فرمائے تھے آپ کی عمر 63 سال تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق جب وفات پائے آپ کی عمر 63 سال تھی۔ حضرت عمر جب وفات پائے آپ کی عمر بھی 63 سال تھی۔ کیسی عظیم مطابقت بھی ہے۔ اور جب آپ کی عمر 27 سال کی تھی، بھری جوانی تھی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی قریشی ہیں، قریش خاندان سے ہیں اور بہت ہی عظیم پہلوانوں میں شمار ہوتے تھے، اور لوگ آپ کی روب و دبدبے سے ڈرتے بھی تھے۔ زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں۔ تو بعثت نبوی کا 3 سال تھا اور بعض روایت میں 6 سال تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 3 سال، بعض روایت میں 6 سال آپ نے اسلام قبول کیا۔ جس وقت حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اس وقت 39 مرد اور 11 عورتیں اسلام لا چکی تھیں، آپ کا نمبر 40واں تھا۔ اور مشہور ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کے وقت بڑے جوشیلے تھے، اور آپ کو جو ذمہ داری تھی وہ دوسرے قبیلوں سے سفارت کے اور بہت ساری ایسی ذمہ داریاں، جب عرب قبیلوں میں جنگیں ہوتی تھیں تو ان جنگوں میں پیش سفارتی تعلقات جو ہوتے ہیں، ایمبیسی جیسے ہوتے ہیں، ان تعلقات کے لیے مکہ والوں کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق کو ہی بھیجا جاتا تھا۔ 25 سال کی عمر میں ہی سفارتی کام کرتے تھے، اور اس لیے بھی کہ کوئی عرب قبیلہ آپ کے سامنے طاقت نہیں دکھاتا تھا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب مکہ مکرمہ میں تھے تو ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، ان کا خاندان بھی قریش ہے، ان کی ماں
इनकी माँ की तरफ से जो रिश्ता है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ की तरफ से जो रिश्ता है, उम्मे जमील जो अबू जहल की सगी बहन है, इस एतबार से अबू जहल रिश्ते में आपका मामू था, सरदार कुरैश है और सारे मक्का को भड़काने वाला भी वही है। तो उसका ये सब मक्का मुकर्रमा में प्रोपेगेंडा चलता था। उसी दौरान हजरत उमर एक मरतबा हरम में थे तो आपको इतना भड़काया, उसने कहा कि इस मोहम्मद का मामला बहुत बढ़ गया है। अब ये मक्का से निकल कर ये बाहर भी इनकी दावत पहुंचने लग गई है, मामला बिगड़ते जा रहे हैं हमारे खुदाओं के। तो हजरत उमर जोश में आए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये इरादा लेकर के निकले कि कत्ल करके आ जाऊं। उस वक्त हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन अरकम के घर में रहा करते, छुप करके अभी दावत दी जाती थी इस्लाम की। अलल ऐलान मुसलमान नमाजें नहीं पढ़ते थे और न ही अलल ऐलान इस्लाम की दावत दी जाती थी। जो मुसलमान थे वो खुफिया थे। 3 साल का अरसा इसी तरह से गुजरा है। तो हजरत उमर ने अपना वाकया इस्लाम लाने का खुद ही बयान किया है कि मैं तलवार उठाए निकला था जोश में कि जाऊं और उस मोहम्मद का आज काम तमाम कर दूं, खत्म कर दूं, ताकि हमारे खुदाओं का जो दीन है वो वैसे ही बरकरार रहे और नया दीन मक्का में आने ना पाए। वो जब जा रहे थे रास्ते में, बनु ज़हरा एक कबीले के शख्स हैं, वो सहाबी थे, मोमिन थे। उन्होंने देखा कि उमर कहाँ जा रहे हैं, बहुत गैज़ो गज़ब में है। रोक करके पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा उस साबी का, यानी दीन से फिरे हुए आदमी का मैं कत्ल करने जा रहा हूँ। हुजूर का इशारा किया तो उस साहबी ने देखा कि इनका इरादा बड़ा सख्त है और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने इनका रास्ता रोकने के लिए कहा कि क्या होगा तुम्हें कत्ल करके, क्या मिलेगा? इस तरह उनको टालने लगे तो हजरत उमर और गुस्से में कहा, लगता है तुम भी बेदीन हो गए, तुम भी हमारे आबा व अजदाद के दीन से फिर गए, मैं तुम्हारे साथ भी वही करूंगा। तो वो जो साहबी थे उन्होंने कहा, इससे भी ताज्जुब की बात मैं नहीं बताऊं तुमको, मैं तो हुआ ही हूँ, लेकिन तुम्हारे घर में जाकर देखो तुम्हारी सगी बहन और बहनोई भी इस्लाम ला चुके। उनको इतना गुस्सा आया, कहा मेरी बहन, उनकी बहन फातिमा बिनते खत्ताब और उनके बहनवी हजरत सईद, ये दोनों इस्लाम ला चुके हैं। हजरत उमर ने कहा पहले मैं अपने घर का किस्सा खत्म कर देता हूँ। आए तो अपनी बहन के घर, तो उस वक्त एक साहबी हजरत खब्बाब, वो इनको कुरान पढ़ा रहे थे, यानी हजरत उमर की बहन और बहनवी को अंदर कुरान पढ़ा रहे थे। हजरत उमर बाहर खड़े होकर सुन रहे थे। जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। बहन डर गई और बहनवी भी डर गए कि उमर आए। तो हजरत खब्बाब को पर्दे में अंदर छुपा दिया और दरवाजा जोर से खोला। अंदर जाते ही हजरत उमर का जोश ये था, कहा कि ये क्या हो रहा है, तुम लोग दीन इस्लाम में आ गए, हमारे आबा व अजदाद का दीन छोड़ चुके हो। आओ देखा नचाओ, मारना शुरू किया। अपनी बहनवी को इतना मारा, वो बीच बचाव के लिए बहन आई तो उनको भी मारा, नाक फट गई। मार मार करके जख्मी कर दिया बहन को भी और बहनवी को। खुद को तरस आया बाद में कि मैं अपनी सगी बहन को मारा है। उसके बाद थक करके बैठे, फिर उठाया दोनों को, कहा मेरे आने से पहले दरवाजे में मैं सुन रहा था कोई कलाम यहाँ पढ़ रहा था, कोई कलाम तुम लोग पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, वो कलाम क्या है सुनाओ मुझको। अभी हजरत उमर इतना कह रहे थे कि वो हजरत खब्बाब जो पर्दे में छुपे थे बाहर आ गए। कहा मैं सुनाता हूँ। हजरत उमर ने कहा तुम यहाँ कैसे? कहा जो कलाम तुम सुन रहे थे वो मैं ही पढ़ रहा था। फिर हजरत खब्बाब ने कुरान की आयतें तिलावत करनी शुरू की। कुरान की आयतें जब सहाबा पढ़ते थे तो ऐसा असर होता था कि पत्थर भी हिल जाए। हजरत उमर सुनते गए सुनते गए सुनते गए, उसके बाद उठ जाते हैं और कहते हैं मैं उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करके आऊंगा। उनकी बहन और बहनवी दोनों थोड़ा सा उनको
خوشی اس بات کی حاصل ہوئی کہ عمر کا دماغ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تب حضرت خباب جو وہاں تھے گھر کے اندر موجود تھے، انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، عمر رسول اللہ کا قتل کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ کل شام کو ہی میں نے رسول اللہ کو یہ دعا کرتے سنا تھا، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو فوقیت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کو عزت عطا کر عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ کہا میں نے کل رسول اللہ سے یہ دعا سنی، ہو سکتا ہے وہ دعا آج ہو گئی۔ تو عمر بن خطاب گئے، تلوار حمائل تھی، زید بن ارقم کے گھر میں چند صحابہ تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جیسے ہی صحابہ نے آتے ہوئے دیکھا سب کھڑے ہو گئے، کہا عمر بن خطاب آ رہے ہیں، ساتھ میں تلوار لی۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صرف ان کے سے 3 دن پہلے ایمان لائے ہوئے تھے اور رسول اللہ کے چچا تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت ہی قرابت ایسی تھی کہ حضرت امیر حمزہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، ایک عمر کے تھے، اور دونوں نے ایک ہی خاتون کا دودھ بھی پیا تھا، چچا تھے، بھتیجے تھے، لیکن عمر ایک تھی، دونوں نے ایک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھی تھے۔ حضرت حمزہ بہت ہی سیریس تھے ان سب معاملات میں، دفاع ناموس رسالت۔ وہ کھڑے ہو گئے اور کہا عمر اگر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، استقبال ہے، اور اگر کوئی غلط نیت ہے تو حمزہ اس کی یہاں سے واپس جانے کے لیے کوئی راستہ چھوڑے گا نہیں۔ تو حضرت حمزہ کو کھڑے ہوتے دیکھ کر صحابہ نے خاموشی اختیار کی۔ عمر ابن خطاب آئے، تلوار تو تھی، حجرے میں آتے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے تلوار رکھ دی اور کہا آپ جس دین کی دعوت دینے کے لیے کلمہ پڑھاتے ہیں وہ کلمہ مجھے بھی عطا فرما۔ قرآن کی چند آیتیں ہی سنی تھی اور اس کے بعد پورا دل بدل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی انہیں مشرف اسلام کیا، جو صحابہ وہاں موجود تھے، یہ پہلا نعرہ تھا جو مکہ میں بلند آواز سے لگا تھا۔ صحابہ جوش میں نعرہ لگائے، عمر ابن خطاب کی ایمان لانے کی خوشی سب کو تھی۔ اب اس کے بعد سب سے پہلا کام جو ہوا حضرت عمر کی طرف سے، جو ان کی اولیات ہیں، جو ان کی خصوصیات ہیں، حضرت عمر کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے احکام اسلام سیکھتے رہے۔ دین اسلام کی خصوصیات حاصل کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول ہمارا دین سچا ہے؟ ہمارا دین سچا ہے؟ کہا بالکل سچا ہے۔ تو کہا پھر یہاں کمرے کے اندر کیوں حرم میں جا کر نماز پڑھیں گے؟ حرم میں خانہ کعبہ کے پاس جائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی بات کو رد نہیں فرمایا۔ 40 مرد تھے اس وقت، حضور نے فرمایا کہ نکلو۔ 2 صفیں لگی تھی مکہ مکرمہ کی گلیوں سے، یہ گزرتے جا رہے تھے۔ ایک صف کے آگے حضرت عمر تھے، دوسری صف کے آگے امیر حمزہ تھے، اور ان کے سامنے کوئی بہادر کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا۔ تو حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے سارے صحابہ مومنین راستوں پر چلتے ہوئے حرم پاک میں داخل ہوئے اور علل اعلان وہاں پر نماز ادا کی یا عبادت کی، اور پہلا خطبہ حرم میں جنہوں نے دیا وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو اسی دن ایک لقب عطا کیا، تم فاروق ہو۔ فاروق کا مطلب ہے فرق پیدا کرنے والا کفر اور اسلام کے درمیان۔ اس دن آپ نے ایسا واضح فرق بتا دیا مومنین کون ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد آپ اگرچہ بڑے پہلوان تھے، سارے تھے، لیکن پھر بھی مشقتیں برداشت کی، کیونکہ عرب سب ایک طرف ہو جاتے تھے، خاندان کے خاندان، قبیلوں کے قبیلے دشمنی پر اتر آتے تھے۔ اور اس کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے ہی حضرت عمر نے ہجرت کی تھی۔
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी मदीने गए नहीं थे उससे पहले। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि हमने मक्का से जितने सहाबा हिजरत किए सबकी हिजरत पता है, लेकिन उमर बिन खत्ताब ने जैसी हिजरत की है वैसी किसी ने नहीं की। कहा उसमें क्या है? कहा सब रात के वक्त या फिर अलग अंदाज से खुफिया रास्तों से हिजरत करके जाते, क्योंकि मक्का वाले पकड़ते तो मारते भी थे, माल लूटते भी थे बहुत सारे। लेकिन उमर इब्न खत्ताब को जिस दिन हिजरत करनी थी, सवारी लिया, सामान लिया और सीधे हरम में आए और खाने काबा का 7 मरतबा तवाफ किया। वहाँ कुरैश के बड़े बड़े सरदार बैठे हुए थे, सबको पुकार करके कहा उमर बिन खत्ताब आज से मक्का छोड़कर हिजरत करके मदीना जा रहा है, तुम में से किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो उमर का मुकाबला करो। जो खड़े हैं सारे सरदारा ने कुरैश देखते रहे। हजरत उमर तवाफ करके शाहाना अंदाज में हिजरत करके चले गए, कोई आपको छू ना सका। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला एक मर्तबा अबू जहल को दरवाजे के पीछे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान सुना रहे थे, सहाबा को खिड़की में कान लगा करके सुनते हुए देखा। हज़रत उमर ने देख लिया, पीछे से आकर के उसको पकड़ा, कहा मामू जान क्या सुन रहे हो? उसने कहा अचानक सटपटा गया, कुरान सुन रहा था, जबकि कट्टर दुश्मन है और इधर से कुरान भी सुन रहा है। पूछा क्या सुन रहे हो? कहा वही जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है। कहा कि अच्छा लग रहा है। कहा उमर किसी को बताना मत, अल्लाह की कसम इससे बेहतर कलाम मैंने सुना ही। जो अहबाब खड़े हैं तो अबू जहल कहता है इससे बेहतर कलाम मैंने सुना ही नहीं। फिर आपने कहा ईमान ले आ जाओ फिर इस्लाम में। कहा नहीं, नाक की बात है, नाक का मसला है। मैं अगर इस्लाम ले आया तो पुरानी दुश्मनी का क्या होगा और हमारे कबीले और हमारे खानदान के लोग क्या समझेंगे, ये क्या समझेंगे वाला मसला कई लोगों को लेकर डुबो देता है। बहुत सारे इसी गुमराही में मर जाते हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, हक की तलाश में ये मत देखना कि कौम क्या कहती है, अवाम क्या कहती है। बहरहाल सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत करके मदीने तैयबा तशरीफ ले गए। आपकी खुसूसियात बहुत हैं, आपके फजाइल और मनाकिब भी बहुत हैं। अब चूंकि तारीख़ इस्लाम हम लेकर के चल रहे हैं शुरू से, और करबला तक की तारीख आपको सुनानी है इंशाअल्लाह। तो ये हमारा सफ़र चल रहा है, तो अब दौरे फारूकी में आ गया है। जाहिर सी बात है, तारीख़ इस्लाम में अगर हज़रत उमर का नाम ना आए तो तारीख मुकम्मल भी नहीं है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि ऐसी बुनियादें हैं तारीख़ इस्लाम की। लफ्ज़ तारीख भी अगर मैं आपको कहूँ, लफ्ज़ तारीख ये भी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कायम की हुई है, जो आज हम हिजरी तारीख लेकर के चल रहे हैं। अभी मुहर्रम की ये तारीखें चल रही हैं और अब साल कौन सा चल रहा है? 1445। मुसलमानों को ये भी याद होना चाहिए, ये जो हिजरी साल है ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कायम किया। तो जाहिर सी बात है, जिसने तारीख की बुनियाद रखी, फिर जब तारीख बयान हो तो उसका बयान तो होगा ही। लेकिन सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फज़ाइल और मनाक़िब बयान से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बस उनकी फजीलत में इतनी बात काफ़ी है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल जैसे मैंने एक हदीस बता रही थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की फजीलत में इतना काफ़ी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितने लोगों ने मेरे साथ एहसान किया मैंने सबके एहसान का बदला चुका दिया सिवाय अबू बकर के। ये उनकी फजीलत में काफ़ी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत में इतनी बात काफ़ी है कि मेरे आका ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, लेकिन मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। तो ये इतनी फजीलत काफ़ी है। बल्कि हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर की पूरी ज़िंदगी देखो तो बनी इसराइल में एक बादशाह था, उस बादशाह से मिलती जुलती सारी उसी तरह से
اور آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کے خصائل، آپ کے مناقب، آپ کی فضیلتیں صرف احادیث میں نہیں ہے، تورات و انجیل میں بھی آئی ہیں، قرآنی کتابوں میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بشارتیں آئی ہیں۔ یہ جو صحابہ ایمان لائے یہودیت سے یا عیسائیت سے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مقدس کتابوں میں یہ تذکرہ سنا ہے، اس اعتبار سے حضرت عمر کا تذکرہ تھا۔ عزیزان گرامی وقار، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں میرے آقا نے جو فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اس راستے پر نہیں آتا، ان کی خوشبو سے شیطان بھاگ جایا کرتا ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ کی طبیعت میں تھوڑی صلابت تھی، سختی تھی، وہ فطری تھی، بچپن سے تھی۔ اسی وجہ سے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا اور جب آپ نام لے رہے تھے عمر ابن خطاب کا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد عمر ابن خطاب تمہارے امیر مقرر ہو، خلیفہ ہوں، تو جو صحابہ تھے ان میں سے ایک صحابی اور کہا امیر خلیفہ رسول اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ عمر ابن خطاب کو ان کی سختی کے آگے کون ٹک پاتا ہے؟ ان کی صلابت اور ان کا جو سخت مزاج ہے وہ کیسے ہانکیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بیماری کے عالم میں تمام صحابہ اور مومنین کو ایسا قائل کیا اور فرمایا کہ یہ دین مصطفیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام ہے، اس نظام کے لیے صلابت اور سختی کی بہت ضرورت ہے۔ دین اسلام کی سرحدیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ صحابہ نے پھر محسوس کیا کہ اب ہمیں ایسا امیر بھی چاہیے جو اتنا سخت ہو، اتنا سخت، اور سختی کس بات میں؟ صرف شریعت مصطفیٰ، باقی اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے نہیں۔ تو صحابہ نے بالاتفاق آپ کو امیر مقرر کر لیا تھا۔ حالت تو یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق کندھے پر کوڑا لے کر کے بازار میں گھومتے تھے۔ جب مدینے کے بازاروں میں جاتے تھے کوڑا ان کا کندھے پر ہی رہتا تھا، جہاں جس کو کچھ گناہ کرتے ہوئے پاتے وہیں کوڑے لگاتے۔ شریعت مصطفیٰ میں کوڑے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہر چیز پیسفلی ہونی چاہیے، امن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر سارے انسانوں کے طبیعت میں امن ہی ہوتا تو پولیس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایسا حقیقت میں ہے نہیں۔ دنیا کی ہر کنٹری، دنیا کا ہر نظام پولیس کا شعبہ رکھتا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کرائم پر کنٹرول کے لیے، اور ان کو سختی کرنے کا حکم بھی دیا جاتا ہے کیونکہ انسانوں کی طبیعت میں ہے، فطرت میں ہے کہ ان کو کچھ سختیاں ایسی ہیں جو سیدھے راستے پر رکھ سکتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، میں اب آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی آپ کو سننا ضروری ہے کہ آپ کے اندر کی یہ جو سختی تھی، صلابت تھی، اور آپ جو فیصلے لیتے تھے اس کا اثر بڑے بڑے صحابہ پر بھی ہوا، بڑے بڑے صحابہ پر بھی اس کا اثر ہوا ہے۔ وہ کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے دور خلافت میں اپنے پابندی لگا دی تھی کہ جتنے علاقوں میں گورنر بنے ہوئے صحابہ ہیں ان کی بھی دیکھ بھال کے لیے کچھ لوگوں کو رکھتے کہ اگر وہ قیمتی گھوڑا اختیار کر لیتے، ترکی گھوڑا اس وقت بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا، حضرت عمر ان کو دوسرے دن ان کو معزول کرنے کا لیٹر جاری کر دیتے، اتر جاؤ تم۔ یا اگر ان کو بہت قیمتی لباس پہنتے ہوئے دیکھتے منع کرتے۔ یہ سختی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریعت مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے تھی۔ بہت بڑے درہم و دینار تو چھوڑے، ایک دن کا بھی آپ غلط انداز سے کسی کو نہ کھانے دیتے تھے نہ اسراف کرنے دیتے، اس کے خلاف تھے آپ، اس کے خلاف رہتے تھے ہمیشہ کہ مسلمانوں کے مال کا ایک آدھا درہم بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ بادشاہوں کا مزاج نہیں تھا کہ جو من میں آئے لٹا دیا کسی بھی بات پر، نہیں، اس بات کے حساب کتاب میں بہت سخت تھے۔ یہاں تک کہ آپ کو میں بتاؤں، اپنے بیت المال کا جو داروغہ تھا اس کو آپ نے اتنا سخت بنا رکھا تھا حساب کتاب کے لیے
कि हजरत उमर फारूक खुद भी अगर बैतुल माल से कभी कर्जा लेते तो बैतुल माल का दारोगा आपसे लड़ने के लिए आ जाता था। इतने दिन हुए अभी तक आपने दिया नहीं, खलीफा हैं आप। हजरत उमर कहते मेरे पास है नहीं, आ जाने के बाद दे दूंगा। वो तकाजा करते करते घर को लिपट जाता था, रिवायत में मौजूद है। अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे को लिपट जाता था, कहता था ज्यादा दिन हो रहे हैं, आपके ऊपर कर्जा हो गया है, जल्दी अदा कीजिए। लेकिन हजरत उमर ने कभी उसके लिए कोड़ा नहीं इस्तेमाल किया। कोई अगर देखता तो ये कहता अरे ये दारोगा बैतुल माल का खलीफा वक्त की तरफ से मुकर्रर किया हुआ दारोगा है, लेकिन ये तकाजा करने आ जाता है माल का, वो भी अमीरुल मोमिनीन से। यहाँ तो पीएम से कोई हिसाब ही नहीं ले सकता, जितना चाहे देश बेच जाए, कोई पूछ भी नहीं सकता। अगर पूछेगा तो उसकी तो सदस्यता खत्म हो जाएगी, हाँ उसकी रुकनीयत भी खत्म हो जाएगी। पूछने की हिम्मत यहाँ नहीं है, कर भी नहीं सकते, चाहे तुम पूरी झोली भर करके यहाँ से पार्सल करो। ये दौर अलग है मेरे अजीजों, कहाँ खिलाफत को हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ माल लूटने वाले चोर डाकू बैठे और लूट करके खूब ले जाएं, स्विस बैंक में दाखिल करें, लेकिन उनको से कोई दूसरा सवाल नहीं कर सकता, पूछ नहीं सकता। अगर पूछ लिया तो उसकी खैर नहीं, दूसरे दिन उसके यहाँ हुकूमत की दामाद एजेंसियां आ जाती तहकीकात के लिए, तफ्तीश के लिए। ये तो सिस्टम है। अपने आप को कभी इन्होंने हिसाब के आगे नहीं रखा कि हमसे कोई मुआखजा नहीं कर सकता, कोई इनको पूछ नहीं सकता तुम 12 लाख का सूट क्यों पहनते हो, नहीं पूछ सकता। लेकिन वो दौरे फारूकी था, जुब्बा भी अगर लंबा होता तो सहाबा पूछ लेते थे। भरे मजमे में हजरत सलमान फारसी ने आपने पूछा था कि माल गनीमत में कपड़ा आपने तकसीम किया था सब सहाबा को, किसी का पूरा जुब्बा नहीं बन रहा था, हजरत उमर का पूरा जुब्बा बन गया। साहबी ने बीच मजमे में खड़े होकर पूछा आपका कैसे बन गया, सबका तो नहीं बना, वैसे भी आप कद में लंबे थे। हजरत उमर ने ये नहीं कहा कि क्या तुम उसको सवाल करने का हक है, बल्कि जवाब दिया, कहा माल गनीमत में मेरे बेटे को भी कपड़ा मिला था, उन्होंने मुझे हिबा कर दिया, दोनों कपड़े मिला करके मैंने सिलाया, मेरा जुब्बा बन गया। जवाब देने का हक था। और जब वो अपने आप को इसका मुआखजा करने का मुस्तहिक समझते थे तो दारोगा को जब इतना सख्त बना कर रखे थे हजरत फारूक कि वो आपसे तकाजा करता था कर्जे के, और बाकी दूसरी चीजों पर सख्ती इस कदर थी कि किसी की रियायत नहीं। अदल व मसावात में, हिसाब किताब में, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के मामलात में बड़े सख्त थे फैसला लेने में। सही रिवायत में अगर आपको बताऊं, जब आपकी वफात हुई थी, आपके जिस्म पाक पर चादर पड़ी हुई थी, दीदार के लिए बहुत लोग आए। जब सहाबा, उनमें से मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आए, सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम चादर हटाते हैं और लोगों से कहते हैं लोगों गवाह हो जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा में मैं इससे ज्यादा नेकियां करने वाला देखा नहीं था, इससे बेहतर आदमी नहीं देखा। और इब्ने असाकिर की रिवायत तो ये है, तारीख इब्ने असाकिर मशहूर मोतबर किताब है, मैं रिवायत आपको बता दूं। हजरत अली का ये फरमान है कि फरमाते अगर किसी को वो देखते कि हजरत अली फरमाते मुझको अबू बकर और उमर से अफजल बताए तो मैं उसको 80 कोड़े मारूंगा, कोड़े लगवा देते हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम। आपने ऐलान फरमाया था, वो इस हद दर्जे ताज़ीम करते थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक की भी और हजरत उमर की भी। ये बताना जरूरी इसलिए है कि बाज लोगों को ये लगता कि ये हसब की हुई खिलाफतें थी, हसब की हुई खिलाफतें थी तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ऐसी तारीफ नहीं करते उन खुलफा की। अज़ीज़ान गिरामी औक़ात, अब दौरे फारूकी की बातें करते हैं, फ़ज़ाइल व मनाक़िब बेशुमार हैं। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलतें बेशुमार हैं। उन्होंने रसूलुल्लाह की सोहबत पाई, ये सबसे बड़ी फजीलत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर घड़ी उनको साथ रखा, ये बड़ी फजीलत है। और आज तक, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, सुनो। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नबी के लिए वजीर होते हैं,
मुझे अल्लाह ताला ने आसमानों में 2 वजीर दिए और जमीन पर भी 2 वजीर दिए। आसमानों में मेरे 2 वजीर जिब्राइल और मीकाइल हैं और जमीन में मेरे 2 वजीर अबू बकर और उमर हैं। और देखो तो आज भी उस हरे गुंबद के नीचे बादशाह आराम फरमाए और दोनों वजीर पहलू में सोए हुए हैं। इस बात की अलामत है, हमने पढ़ा था कि बादशाह जब कुर्सी पर विराजमान होता है और वजीर उसके आसपास हैं तो ये अलामत होती है कि बादशाह का निजाम अभी चल रहा है, और अगर वजीर चले गए तो ये अलामत होती कि अब बादशाह की मजलिस खत्म हो गई है, रियाया के अब मामलात सुने नहीं जाएंगे। जब तक वजीर अगल बगल होते हैं ये अलामत होती है कि रियाया के मामलात सुने जाएंगे, अभी निजाम चल रहा है। कुर्बान जाओ उस हसीन गुंबद खजरा की छांव के नीचे। बादशाह आजम भी आराम फरमाए और पहलू में दोनों वजीर भी हैं। ये इस बात की अलामत है कि निजाम भी चल रहा है और रियाया की सुनी भी जा रही है। और उस सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फज़ाइल व मनाक़िब के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। दौरे फारूकी की सबसे बड़े जो चैलेंजेस थे तारीख़ इस्लाम में, ये ज़रूरी है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इस्लाम की सरहदें कहाँ से कहाँ तक ले गई। हज़रत उमर का ज़माना है और आपने कल सुना था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में हज़रत खालिद बिन वलीद ने ईरान को छेड़ कर रखा था। इराक के बहुत सारे इलाके आपने फतह कर लिए थे, अजनादैन वगैरह, फुरात के इलाके। और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये मुहिम अब रोक दी गई थी। ईरान के सख्त गिर लोग थे, यज़दगर्द उनका जो बादशाह था ईरान, किसरा, अरे भाई सुपर पावर कहते उस जमाने, हजारों लाखों की फौज रखते थे। इतना आसान नहीं था, मुहिम तो छिड़ी थी हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में। और हजरत खालिद बिन वलीद मुल्क शाम गए, वहीं थे शाम रोमियों के कब्जे में था, जो रोमन एम्पायर है। अब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये खबर थी अच्छी तरह से कि सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में ईरान के इन इलाकों में मुहिम चल रही है, मुसलमान गए हुए हैं, कुछ इलाके बचे हुए। तो आपने उसी मुहिम को और ताज़ा करने के लिए अपनी खिलाफत का सबसे पहला खुतबा दिया। खिलाफत में आने के बाद खुतबा दिया और मुसलमानों को उभारने लगे। तकरीबन 20 दिनों तक कोई आए नहीं। फिर उसके बाद जलाले फारूकी ऐसा था, आपके खुतबे ने ऐसा जोश भर दिया कि मदीना तैयबा और अतराफ के सारे मुसलमान जमा होने शुरू हो गए कि हम जाएंगे उस ईरान की ताकत को ताकत और ताराज करें। अब इस फौज को जब हज़रत उमर फारूक ने जमा किया, अबू उबैद सख्ती है, बनु सकीफ कबीले के सहाबी थे, इनकी सिपह सालारी में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना तैयबा से फौज रवाना की और ये फौज निकली। फिर ईरान की उन सरहदों में दाखिल होने लगी। ईरान के यज़दगर्द को जब पता चला कि मुसलमान आ रहे हैं, तो चूंकि पहले ही जंगों में खालिद बिन वलीद ने उनके दांत खट्टे कर रखे थे, उन्हें पता था, तो अपना मशहूर मारूफ पहलवान जिसको आज भी दुनिया नाम से याद रखती है, रुस्तम पहलवान, ये ईरान का पहलवान है और उसकी पहलवानी के चर्चे पूरी दुनिया में थे। रुस्तम को तैयार किया और 20,000 की फौज देकर के यज़दगर्द ने भेज दिया मुसलमानों की इस फौज को रोकने के लिए। हज़रत अबू उबैद सक़फ़ी ये बड़े जोश में निकले थे और इनके साथ जो सहाबा थे वो तकरीबन 2000 इन सहाबा को लेकर के वो इराक में पहले दाखिल हुए। इराक के कुछ इलाके फतह करते हुए फुरात के आगे जा रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने मना किया था, उसके बावजूद हज़रत अबू उबैद फुरात के उस पार गए। ईरानी उस वक्त जो लड़ते थे वो हाथियों पर बैठकर लड़ते और अरब जो है घोड़ों पर बैठकर लड़ते। घोड़ों का रिवाज था और उनके यहाँ हाथी पर बैठकर सवार होकर आते और उनके देव पेकर हाथी ऐसे थे कि जब वो मैदान में आए तो उनके घोड़े बिदक गए। बड़े बड़े जानवरों को देखकर, हाथियों को,
तो मुसलमान पसपा हो गए, पीछे की तरफ हटने लगे। और इसी असना में ईरानियों के हाथियों के हमले से हजरत अबू उबैद उनके नरगे में आ गए और एक हाथी ने अपने सूंड में दबाकर अपने पैर में उनको कुचल दिया, वो शहीद हुए। ये मुसलमानों की पसपाई हुई। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खबर मिली तो इसका बड़ा कल्क हुआ। तकरीबन 700 या 800 के करीब मुसलमान वहाँ शहीद हुए। और दरियाए फुरात है इराक में और दरियाए दजला है। अब इन हालात के चलते हुए जंगें कसरत से चल रही हैं। फिर हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर मुकर्रर करके सिपह सालार बना दिया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 20,000 का लश्कर तैयार किया। ये मुसलमानों का बड़ा लश्कर था जिसमें बदरी सहाबा थे, उहद के सहाबा थे, फतेह मक्का के सहाबा थे। ये अजीम सहाबा और शहजादे सहाबा के जितने थे सब शामिल थे। और इसमें इतना जोश था कि खुद हजरत उमर फारूक दौड़े दौड़े इस जंग में आना चाहते थे। आपको लोगों ने रोक दिया कि मदीना को खाली नहीं किया जा सकता, आप यहाँ रहे। हजरत साद इब्न अबी वक्कास को ऐसी तंबीह करके भेजा था हजरत उमर ने कि हर मंजिल का मुझे नक्शा कंटिन्यू भेजते रहे, यानी बिल्कुल कांटेक्ट में रहे। और हर जगह क्या क्या हालात है कासिद को फौरी तौर पर भेजते रहे। उस वक्त निज़ाम कासिद का था। तो हजरत उमर को इराक के चप्पे चप्पे का इल्म था। आपने जंगी तरतीब ऐसी दी हजरत साद इब्न अबी वक्कास को भेजकर, ये वही फौज है मेरे अजीज तारीख की जो इराक की सरजमीन पर उतरी और ईरानियों के मुकाबले में आई। तो ईरानियों ने मेहरान और जाज़वे नाम के 2 बड़े सिपह सालारों को भेजा था, तकरीबन 1 लाख की फौज देकर। और ये है जंगे कादसिया जो मशहूर है। जंगों में जंगे कादसिया का नाम अगर आप सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा। ये बहुत ही अजीम जंग लड़ी, आसान नहीं थी। 20,000 साहब और उसके बाद उनकी 1 लाख की नहीं बल्कि 2 लाख की फौज है। और उनमें हाथी, बड़े बड़े किस्म के पहलवान सब जमा हुए। कादसिया का ये मैदान हजरत साद इब्न अबी वक्कास की सिपह सालारी में लड़ा जाना था। पहला ही दिन ऐसा था कि कसरत से मुसलमान शहीद हुए, लेकिन पीछे नहीं हटे, जंग कादसिया। और ये जंग ऐसी थी जहां सहाबा अपना जिगर निकाल कर रख चुके थे। कई ऐसे सहाबा हैं जिनकी कुर्बानियों को जिक्र करने के लिए तवील वक्त दरकार है। तवील वक्त जंग कादसिया। एक साहबी हजरत खंसा, ये पहले जमाने जाहिलियत की शायरा थी, शेर व शायरी करती। और इनकी शेर व शायरी ऐसी मशहूर थी, जब कोई मरता था अरब में तो उस पर मरसिया बोला जाता था। मरसिया मातम करने के लिए, रोलाने के लिए शेर बोलते थे। तो ये खंसा इस बात में मशहूर थी जब इनके भाई का इंतकाल हुआ था और एक बार बाप का इंतकाल हुआ था। तो अपने भाई और बाप के इंतकाल के वक्त जो इन्होंने मरसिए पढ़े थे, अरब लोग 2 साल तक सुनकर रोते थे। उन्होंने 2 साल तक रुलाया है, नए नए शेर बोल बोल करके लोगों को रुलाया, जैसे आज मातम की मजलिसों में रुलाया जाता। तो उस वक्त ये मातम का रिवाज था, नोहा करती थी औरतें। और अरब की जाहिलियत में मरने पर इस तरह के मरसिए पढ़े जाते थे। ये वो खंसा है जो जमाने जाहिलियत की मशहूर शायरा। अल्लाह अकबर। दीन इस्लाम जब किसी के सीने में दाखिल होता है तो तब्दीली कैसे आती है। ये वही खंसा है जंग कादसिया के लिए जब मदीने में सहाबा जमा हो रहे थे, ये खातून दौड़ी दौड़ी हजरत उमर के पास आई और कहा मेरे 4 बेटे, मैं चारों को भेजना चाहती हूँ। 4 लड़के। लोगों ने तो ये देखा हजरत खंसा सादियां ईमान ला चुकी हैं, 4 जवान बेटों का हाथ पकड़ करके जंग में ले आई थी। अब ये मरसिए के शेर नहीं पढ़ती थी, गम के अशार नहीं पढ़ती थी, बल्कि जब मुजाहिदीन मैदान में उतरते थे उनको जोश दिलाने के ऐसे अशार पढ़ती कि कोई पीछे मुड़ना भी पसंद नहीं करता था। औरत बोल रही है, औरत के शेर व शायरी। तो अपने बेटों को अपने अशार से ऐसा मजबूत करके मैदान में उतारी थी। कहाँ है वो माएँ आज बच्चों के लिए खौफजदा होती हैं? कहाँ वो माँ है जो 4 जवान बेटों को मैदान में उतार कर
फिर पीछे खड़ी होकर शेर व शायरी भी कर रही हैं, सिर्फ इस बात पर कि तुम दुनिया की उस अजीम कौम से वाबस्ता हो जिसका अमीर मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिसके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वो शार में ऐसी बातें कहती। इत्तेफाक ऐसा है कि उस जंगे कादसिया में हजरत खंसा के चारों बेटे शहीद हुए, 4 बेटे एक साथ इंतकाल किए। तो अरब में ये बात फैल गई कि खंसा अब कैसे मरसिया पड़ेगी। भाई की मौत पर तो 2 साल रुलाया, बाप की मौत पर तो 2 साल रुलाया, 4 बेटे मर गए, अब क्या पड़ेगी और कितना रुलाएगी। लोगों ने आकर कहा अब कौन से मरसिया पड़ेगी। हजरत खंसा ने कहा 4 बेटों की मौत पर अब मैं ये पढ़ूंगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले। इस्लाम पूरा दिल बदल देता, जमाने जाहिलियत के सारे काम बदल जाते हैं। ये आज कैसी बात है कि इस्लाम में पैदा हुए, इस्लाम में बड़े हो, लेकिन जाहिलियत के अफआल और किरदार आज भी तुम्हारे अंदर पाए जाते हैं। कुछ हिंदुओं के, कुछ क्रिश्चियनों के, कुछ पता नहीं कहाँ के तुम्हारे घरों में ये सब रसूमात घर करने लग गए। वो ऐसे थे कि दीन में आने के बाद पुरानी सारी चीजें ऐसे निकाल देते थे, तब्दीली आती थी। जंगे कादसिया है, जंगे कादसिया में साद इब्न अबी वक्कास ने बड़ी जवान मर्दी के साथ सिपह सालारी का हक अदा किया और इसमें बहुत सारे सहाबा शहीद हुए। ये 3 दिन तक चली जंग और उसके बाद हजरत अस्मा की यहाँ पर वो कारकर्दगी बयान के काबिल। हजरत अस्मा ये सिद्दीक़ अकबर की बेटी है। इन्होंने देखा यहाँ पर हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये कारकर्दगी बयान की जाती है। वो जंग कादसिया में हो कि जंग यरमौक में हो, लेकिन बहरहाल में बीच में ये सहाबा के साथ उन सहाबियात की कारकर्दगी बताता हूँ कि वो सब औरतों के खीमों में आई और कहा ऐ औरतों जमा हो जाओ, क्या चाहती हो। हमारे पास 2 रास्ते हैं, अगर हमारे मर्द जितने हैं शहीद हो गए, अगर ये मारे गए तो हमारे पास 2 रास्ते, या तो दुश्मन कौम की बांदी बन जाएंगे हम, वो गुलाम बनाकर हमें ले जाएंगे कनीज बनाकर, कुफ्फार और मुशरिकीन के हाथों में बांदी बन करके रहना पड़ेगा, या अगर बच करके वापस भी जाओगी तो बेवा बन करके रहना पड़ेगा। 2 में से एक चीज है तुम्हारे। औरतों ने पूछा क्या करना है, कहा उठो और अपने जवानों को जोश दिलाओ। तो उनके जो खीमे लगते थे, झोपड़ियां होती थी, 4-4 लकड़ियां गाड़ करके उस पर पर्दा डालकर खीमे बनाए जाते। हजरत अस्मा ने कहा 4 औरतें खीमे की 4 चोब लकड़ियां उठाएं और दौड़ पड़े। तो औरतें वो खीमा उखाड़ करके मैदान में दौड़ती थी। शाम का वक्त था और ये जो लश्कर मुकाबिल में था ये देख करके घबरा गया। उन्होंने कहा कि ना इसमें इंसान नजर आता है, ना कोई फौजी है, ये तो झोपड़ियां खुद ही चलती आ रही है, ये घर चलते हुए आ रहे हैं हमारी तरफ। ऐसी भगदड़ मची थी उनके अंदर कि वो आपस में एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते थे, पता नहीं उनके जानवर कितने उनको कुचल गए। इनके इस किरदार पर मुसलमानों को फतेह अजीम हासिल हुई। जंगे कादसिया के बाद ईरान में ऐसी बात फैल गई कि अब ईरानियों की ताकत खत्म होने लगी। मेरे अजीजों, एक जंग में 10-10 हजार ईरानी मारे गए, ये मामूली बात नहीं थी। उस वक्त उनके दौर में कभी 2000 कभी 10,000 मुकाबले में होते रहे। अब उसके बाद मुसलमानों का ये जब मैं गफीर साद इब्न अबी वक्कास के साथ दरियाए दजला पर आया, अब तारीख की वो अहम बात मैं अर्ज करने जा रहा हूँ दौरे फारूकी की। ये इराक पूरा फतह कर चुके थे, अब ईरान की सरहद के अंदर दाखिल होना था। अब बचा कचा ईरान जो पर्शियन एम्पायर है उन्होंने अपने ईरान को संभाल रखा था। दूर दूर सरहदें फैली थी, मुसलमान चलते चलते सरहदों में अंदर आ गए थे। जो आज का ईरान है, इतना ईरान बचा उनके हाथों में बचा था। अरे बादशाह के लिए कुछ तो छोड़ो। अब ईरानी बादशाहों ने दरियाओं के किनारे पूरी फौज लगा रखी थी कि मुसलमान कहीं से
पार होकर के इस सरहद के अंदर ना आ जाएं और दरिया दजला के ऊपर जितने पुल बने थे, ब्रिज, सब तोड़ डाले कि दरिया उबूर करके पार करके कोई आ ना सके, क्रॉस ना कर सके। लेकिन सहाबा का जोश और जुनून ऐसा था कि वो कहीं को रुकने वाले नहीं थे। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा है, थमता न था किसी से सैले रवां हमारा। जब वहां पहुंचे तो साद इब्न अबी वक्कास के साथ जो सहाबा थे उनसे उन्होंने पूछा कि अब क्या करना है, आगे बढ़ना है? सहाबा ने कहा आगे तो बढ़ना है, रास्ता कहाँ है? साद इब्न अबी वक्कास ने कहा चलो इसी दरिया में घोड़े डाल देते हैं। दरिया वो छोटे पानी का नहीं है, अंदर जाने के लिए भी 10 मिनट की गहराई है। अंदर अगर डूबना भी चाहे 10 मिनट तक जाता रहे। दुनिया की गहरी नदियों में से है दरिया दजला, और चौड़ाई भी काफी है। और उसमें घोड़े डालने की बात कर रहे हैं। किसी एक सहाबी ने भी ये नहीं कहा कैसे डाले, नहीं, अमीर की इताअत मेरे आका से उन्होंने ऐसी सीखी थी, आंख बंद करके सबों ने घोड़े डाले। साद इब्न अबी वक्कास ने पहला घोड़ा उस नदी के ऊपर डाला था और घोड़ा नदी पर दौड़ता हुआ ऐसा गया था, ऐसा कि घोड़ा पानी उछालता रहा, लेकिन घोड़े के पांव अंदर नदी के अंदर नहीं धंसते थे। जब सहाबा ने देखा सिपह सालार का घोड़ा पानी को उबूर करता हुआ जा रहा है, सबों ने घोड़े डाल दिए और दरिया पर चलते हुए ये पहली जमात है, दरिया पर दौड़ता हुआ ये पहला लश्कर है। और ईरानी फौज जो वहां खड़ी थी उन्होंने जो जुमले कहे थे, तारीख तबरी में आज भी मौजूद है, फारसी में उन्होंने कहा था देवा आमदंद, देवा आमदंद, देव लोग आ गए हैं, जिन्नात आ गए हैं हमारी सरहद में। भला आज तक कोई इंसान पानी पर चलता हुआ नजर आया? लेकिन उन जालिमों को ये पता नहीं था ये मोहम्मद अरबी के गुलाम है। मौला अगर चाहे तो दरिया भी इनके लिए रास्ते बना दे। इसी को इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ईरान की सरहदों में दाखिल हो गए। अब जो ईरानी फौज मुंतशिर हो गई, खौफ के मारे तितर बितर हो गई। यज़दगर्द के पास जाकर की खबर पहुंचाई गई कि मुसलमान ईरान में दाखिल हो गए। इसी गम में कितने वजीरों का इंतकाल हो गया, लड़ने से पहले हार्ट अटैक आता होगा उस जमाने। लेकिन अब के डॉक्टर सर्जरी या नई मेडिकल तहकीकात से बता देते हैं, लेकिन उस वक्त भी होता था। बहुत सारे मर गए मुसलमानों की आमद को सुनकर कि ये ईरान की सरहदों में दाखिल हो चुके। अजीज़ान गिराम वक़ार, फिर उसके बाद साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईरान में दाखिल तो हो गए। अब मामला ये है कि उस किसरा बादशाह की ताकतवर फौज को ज़ेर करना है। इस ताकतवर फौज को धूल चटाने के लिए सिर्फ मुसलमानों की ये तादाद काफी नहीं थी। फिर हज़रत उमर फारूक को लिखकर भेजा गया और कमक भेजी जाए और फौज भेजी जाए। बहुत सारे सहाबा शहीद हुए हैं जंग कासिया को सर करने के बाद। जानते हैं एक और अदा मैं सैयदना उमर इब्न खत्ताब की बताता हूँ। वो इस कदर तमन्ना में रहते थे कि क्या खबर है, कासिया में क्या हो रहा है, इराक कैसे बता हो रहा है, ईरान में क्या चल रहा है। रोज एक कासिद आता था खबर लेकर के। और जब जंगे कादसिया फतह हो चुकी मुसलमानों के लिए, जो कासिद को हज़रत साद इब्न अबी वक्कास ने खत देकर भेजा था, जल्दी से जाओ उमर इब्न खत्ताब अमीरुल मोमिनीन को ये पैगाम पहुंचाओ, हमने जंगे कादसिया फतह कर ली है। वो सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए मदीने की तरफ आ रहा था और हज़रत उमर का हाल ये था कि हज़रत उमर खबर सुनने के लिए मदीने में नहीं, मदीने से बाहर जाकर खड़े रहते थे। अभी कासिद आएगा खबर लेकर आएगा, अभी कासिद आएगा खबर लेकर आएगा। लेकिन इस बार का मामला ऐसा है, मैं पढ़ करके हंसता रह गया, दिल के अंदर अजीब सी कैफियत थी। हज़रत उमर खड़े हैं और कासिद खबर लेकर के आया। वहीं से आप उसको पूछने लग गए क्या खबर है कादसिया की। वो कासिद पहचानता नहीं था, वो घोड़ा दौड़ाता जा रहा है और खबर देता जा रहा है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। और हज़रत उमर घोड़े की दुम पकड़ करके दौड़ते हुए जा रहे हैं और खबर सुनते हुए जा रहे हैं और वो उनको दौड़ा रहा है और खबरें सुना रहा है। हज़रत उमर दौड़ते दौड़ते थक गए और घोड़े के पीछे आए। मदीने में मदीने वालों ने देखा, उस घोड़े सवार को कहा, अरे मियाँ अमीरुल मोमिनीन को क्यों दौड़ा रहे हो? वो डर के मारे उतर गया, कहा ये अमीरुल मोमिनीन है, मैं इनके लिए खबर ले आया। हज़रत उमर अपनी अमामा को उतारते कहते कोई बात नहीं, और दौड़ो और खबरें सुनाओ, और दौड़ो और खबरें सुनाओ इस्लाम की फतह की, इस्लाम की
پھیلنے کی بشارت ہے۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، کہا اے لوگوں، عمر کی کبھی یہ خواہش نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنا غلام بنائے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسی طرح جینا چاہتا ہوں جیسے اللہ کا بندہ ہو۔ مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہوگی کہ کوئی میری تعریف کرے یا میرے گھر پر میرے دروازے پر آنے سے گھبرائے، مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ کوئی بھی شخص اپنی ضرورت کے لیے مجھے یاد کرے اور میں اس کے کام آ جاؤں۔ یہ خطبے میں آپ نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر اب دور آتا ہے سیدنا خالد بن ولید کا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے چہیتے صحابی یعنی چہیتے دوست حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور بہت سارے فتوحات میں آپ کا کردار رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ملک شام کی فتح کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت خالد بن ولید نہیں تھے۔ حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ مل گئے اور ہوا یہ حمص میں، یعنی اس وقت کا جو ایک مشہور علاقہ تھا، آج بھی وہ حمص ہی کہلاتا ہے، ملک شام میں عیسائیوں کا مرکز تھا، اور وہاں کے بطریق کو یعنی بڑا جو پادری تھا اس کے گھر، یا وہاں کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ کا جو نائب ہوا کرتا تھا، اس کے گھر بیٹھا ہوا تھا، وہ لوگ شراب پی پی کر کے مستیاں کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ عیسائیوں میں شراب پینے کو ہی سب سے بڑی خوشی سمجھی جاتی، اور اس وقت سب بدمست تھے، رات کا وقت تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے اس قلعے میں داخل ہو گئے، اور یہ شراب کے نشے میں چور تھے، ان کو پتہ ہی نہیں کون شہر میں داخل ہوا، اور حضرت خالد بن ولید جیسے ہی آئے سارا نشہ اتر گیا، جتنی شراب پی تھی، جتنا بھنگ پیا تھا، سب نکل گیا، اور سب دوڑے دوڑے بھگتے ہوئے ادھر ادھر بھاگتے رہے، اور حضرت خالد بن ولید سے نے کہا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس ہے اور کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان سے صلح کر، ایک طرف حضرت خالد بن ولید جنگ کرنے آئے تھے، دوسری طرف ابو عبیدہ بن جراح صلح کر رہے تھے، اور اسی اثنا میں دمشق جو آج بھی راجدھانی ہے ملک شام کی، حضرت خالد بن ولید کا صرف چل کر کے آنا تھا، جنگ کرنا نہیں تھا، ان کو صلح پر مجبور کر صرف چل کر کے آئے تھے، اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے صلح کر لی تو ملک شام کا یہ دمشق علاقہ سب سے پہلے اسلام میں آیا۔ یہ رومن امپائر کو اب چھیڑ دیا تھا، اس وقت کے سپر پاور، دوسری سپر پاور طاقت روما کو چھیڑ دیا اور دمشق کو حاصل کر لیا۔ سیدنا خالد بن ولید کی ایک ادا بڑی پسند آتی، ایک اور علاقہ عیسائیوں کا تھا حمص کے بعد، وہاں آپ اپنی جوان لشکریوں کو لے کر پہنچے تھے، فوجیوں کو۔ عیسائی بڑے مکار اس وقت بھی ہیلے کرتے تھے اور کسی نہ کسی طرح حربے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے۔ انہوں نے دیکھا دمشق ہمارے ہاتھ سے گیا ہے، حمص چلا گیا ہے، اور جس علاقے میں حضرت خالد بن ولید آئے وہاں عیسائیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا، اور شہر کے اطراف قلعہ بنایا جاتا تھا۔ قلعہ کیسے ہوتا تھا؟ پوری دیواریں بنا دی جاتی تھی شہر کے اطراف، بڑی بڑی دیواریں، اور ان دیواروں کے اندر پورا شہر آباد ہوتا تھا۔ کبھی آپ اجمیر شریف جاتے ہیں تو بڑے بڑے دروازے دیکھتے ہوں جو اس زمانے کے سرحدیں ہوا کرتی تھی شہر کی، اور کوئی بھی داخل ہوتا تو اس دروازے کے اندر سے ہی جانا ہوتا۔ اس طرح قلعے کے اندر بند ہو جاتے تھے، جنگیں اسی طرح لڑی جاتی تھی۔ تو ان عیسائیوں نے سارے دروازے بند کر لیے اور قلعے کے اندر بیٹھ گئے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر آ گئے۔ لڑنا تو تھا نہیں۔ یہ محاصرہ 40 دن تک چلا، یعنی حضرت خالد بن ولید پیچھے ہٹنے والے تو نہیں تھے، پورے فوج کو لے کر کے انہوں نے بھی پڑاؤ ڈال دیا کہ ہم بھی یہیں رہیں گے، تم جب تک باہر نہیں آؤ گے ہم بھی باہر ہی بیٹھے رہیں گے۔ اب یہ چاروں طرف سے جو مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اتنے دنوں تک، عیسائیوں کا جو پادری اندر تھا اس نے مشورہ کیا ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکیں گے، لڑنا مشکل ہے، ان کو میں ایک دوسرے طریقے سے زیر کر سکتا ہوں۔ کیا ہے؟ خالد بن ولید کی فوج میں جوان لشکری زیادہ ہیں، اور ہر جوان مال و دولت اور عورت کی طرف جلدی جاتا ہے۔ تو اس پادری نے یہ کیا کہ میں شہر کی ساری بڑی اور خوبصورت لڑکیوں کو لا کر میدان میں کھڑا کر دوں، اور خالد بن ولید سے صلح کے نام پر میں
मुआहिदा कर लूँगा, एक शर्त रखूँगा कि इस बाजार से गुजरते हुए किले तक आ जाओ, सही सलामत आ गए तो चाबियाँ तुम्हारे हवाले कर देंगे। लेकिन खालिद बिन वलीद को उन्होंने बताया नहीं। जा करके खालिद बिन वलीद से ईसाई पादरी ने कहा, हम लड़ना नहीं चाहते, आप आए हैं ठीक, हम सुलह करेंगे, लेकिन हमारी ये शर्त है 3 दिन के बाद आप अपनी इस फौज को लेकर इस बाजार से गुजरते हुए किले तक आ जाएं शाहाना शौकत के साथ। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा ठीक है, मंजूर है। 3 दिन के बाद जब अपनी फौज को लेकर के वो निकले तो इनकी ये घटिया और जलील हरकत देखकर रुक गए। इन ईसाइयों ने क्या किया था, पूरे बाजार में नंगी लड़कियां खड़ी की, आधे लिबास में, बरहना लिबास में, और दौलत से मुज़र के जंबार बिछा दिए सड़कों पर। जाहिर सी बात है, ये नौजवान लश्करियों को लूटने के लिए, आज भी फौज में बहुत बुराइयां रहती हैं, महीनों से फौज दूर रहती है घरों से, तो उनके अंदर नफसानी ख्वाहिशात आ जाती हैं। ये सोच करके कभी भी फौज को तोड़ने के लिए इस तरह की हरकतें हमेशा की जाती रही, ईसाइयों की तरफ से होती रही। इनको नफसानी ख्वाहिशात में मगलूब किया जा सकता है। अब जैसे ही हज़रत खालिद बिन वलीद की नजर पड़ी, अल्लाह अकबर, कमाल इस्तिकामत है। इस्तिकामत अल्लाह ने कैसी दी, आप खड़े हो गए और ऐसी तकरीर की थी, वो आज भी महफूज है। अपने नौजवान सिपाहियों से कहा, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है, अगर तुम्हारा कदम डगमगा गया तो क़यामत तक आने वाली नस्लें तुमको बुराई से याद करेंगी, तुम पर लानत भेजी जाएगी, और अगर तुम्हारा कदम सही सलामत रहा तो क़यामत तक आने वाले तुम पर रहमतों की फूल बरसाएंगे, खुशियों से याद किए जाएंगे। वो जवानों ने पूछा, हमें क्या करना है? खालिद बिन वलीद ने कहा, बस सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करना। मैंने रसूलुल्लाह को देखा है कि जब मेरे आका मदीने के बाजार में गुजरते थे तो आंखें नीची कर चलते थे, हुजूर की निगाहें नीची होती, बस तुम इस सुन्नत पर अमल करके जाओ ऐ नौजवानों। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, नज़रतु सहमुम मिन सिहामि शैतान, नजर जो है शैतान के तीरों में से एक तीर है, सबसे पहले तुम्हारी नजर धोखा खाती है। तुम अजनबी औरतों के ऊपर नजर डालते हो, या जो नाजायज है उसकी तरफ नजर ही डालते हो, यहाँ से तुम्हारा पूरा जिस्म बदल जाता है। नजरें तुम्हारे दिल के अंदर हरकतें पैदा करती हैं, फिर ये काम नजरें तुम्हें जिना तक ले जाती हैं। अल्लायाज़ु बिल्लाह, नजर से बचना बहुत जरूरी है। हज़रत खालिद बिन वलीद की इस तकरीर के बाद वो सारे नौजवान सिपाही, जानते हो कैसे चलते हुए जा रहे थे। आज भी हमने फौजियों के परेड देखे हैं, ये आज भी फौजी चलते हुए देखे हैं, ये जिस तरह से चलते हैं उनकी अपनी चाल होती है फौजियों की, लेकिन खालिद बिन वलीद के लश्कर की चाल ही अलग थी। रिवायत करने वाले बताते वो ऐसे चल रहे थे, अगर उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाता तो नहीं गिरता। इस तरह से साकी तो जामिद सीधे सीधे चले गए। बाजार में खड़ी हुई बहना औरतें उनको अपनी तरफ बुलाती रह गई, दामे फरेब में फंसाने के लिए हरबे करती रही। एक जवान ने भी नजर उठाकर देखा हो, किसी ने नहीं देखा। पूरा बाजार सर कर लिया और किले के फाटक तक पहुंच गए। इधर ये ईसाई बदमाश शराब पी रहे थे और सोच रहे थे ये भटक गए होंगे, भटक गए होंगे, और इस फितने में वो मुब्तला हो गए होंगे और हमारी फौज इनका मुकाबला कर सकेगी जब ये अय्याश हो जाएंगे। लेकिन सबको सही सलामत किले के फाटक पर पहुंचे हुए देखा। ईसाई पादरी हक्का बक्का रह गया, चाबियां लाया और खालिद बिन वलीद के हाथ में दे दिया, कहा ले लो, ये तुम्हारी है, आप इस किले के मालिक हैं, लेकिन आप किले का दरवाजा खोलने से पहले मुझे भी इस्लाम में दाखिल कर। खालिद बिन वलीद से उस ईसाई पादरी ने कहा, मुझे हैरत होती है तुमने जो जमात जमा की है ये इंसानों की है या फरिश्तों की है? इनके दिलों के अंदर ख्वाहिशात है या नहीं, इनके अंदर नफ्स है या नहीं? हजरत खालिद बिन वलीद ने कुछ नहीं कहा, तसव्वुर में यही कहा होगा। आपने फरमाया हजरत खालिद बिन वलीद ने, ऐ नादान ईसाई, तू उन आंखों को खरीदने की कोशिश कर रहा है जो उसमें पहले से जमाले मुस्तफ़ा बसाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिन आंखों ने देखा हो, उनके सामने भला दुनिया का हुस्न क्या माने रखता है।
ہاں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلواتے. اعلیٰ حضرت نے سچ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے. حضور کے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھے. کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلواتے رہا. یا رسول اللہ تلوے کا حال یہ ہے کہ آپ کا تلوہ دیکھ لوں تو کسی کا چہرہ اچھا نہ لگے. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے شیدائی صحابہ کو کوئی خرید نہ سکا. سیدنا خالد بن ولید نے یہ قلعہ بھی فتح کر لیا. فتوحات بڑھتی گئی. میں کہہ رہا ہوں اس وقت کی تو سپر پاور طاقتوں کو ٹکر دینے والے خالد بن ولید پھر ایران میں بھی داخل ہو. ایران کی بچی کچی سلطنتوں کو اکھیڑ کر پھینک دیا. ایران میں پرچم اسلام لہرانے لگا. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کو چھیڑ ہی چکے تھے. روم کے اندر جو بادشاہوں کا دور تھا ہرقل موجود تھا, عظیم الروم جس کو کہتے ہیں. ان کی حالت بڑی گمبھیر تھی. یہ کہیں جنگ کرنے کو نہیں تیار تھے. سپر پاور جہاں بات آتی کہتے مسلمانوں سے ہم پہلے صلح کر لیں گے. ٹیکس دینا ہے ٹیکس دیں گے, مال دینا ہے مال دیں گے. یہاں تک کہ عراق کے کچھ علاقے جہاں عیسائی رہتے تھے جب رومیوں سے جنگ چل رہی تھی تو چونکہ عیسائی روم کو فالو کرتے تھے تو حضرت خالد بن ولید کا عدل تو دیکھیں. کہا جن عراقی علاقوں سے جہاں عیسائی لوگ رہتے تھے ہم ان سے ٹیکس لیتے تھے. ٹیکس کیوں لیا جاتا تھا؟ جس کو جزیہ کہتے ہیں, جزیہ غیر مسلموں سے اس لیے لیا جاتا تھا کہ ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت کریں. جان و مال کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. تمہارے ساتھ کوئی برا نہیں کرے گا, کوئی دوسرا آ کر حملہ نہیں کرے گا, ورنہ ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اس بات کے لیے اپنے مفتوحہ علاقوں میں جو غیر مسلم رہتے تھے ان سے جزیہ لیا جاتا تھا. وہ ٹیکس ہے. آج ٹی وی اینکر بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرواتے ہیں اس بات پر جزیہ. ان کو جزیہ بولنا بھی نہیں آتا. جزیہ اور اس پر منہ پھاڑ کر کے کہتے رہتے ہیں کہ یہ جزیہ لیتے تھے مسلمان, جزیہ لیتے تھے غیر مسلموں سے. کیا ظلم نہیں ہے؟ مسلمانوں سے نہیں لیتے تھے لیکن غیر مسلموں سے لیتے تھے. ارے نادانوں, آج بھی یہ سسٹم ہے, آج بھی یہ سسٹم ہے. ہمارا ملک خود ہم سے ٹیکس لیتا ہے, چاہے یہاں ہندو ہو کہ مسلمانوں کوئی بھی ہو. اور کس بات کے لیے لیتا ہے؟ کیا یہ تاناشاہی ہے؟ ہوگی. لیکن اصل اس کا مقصد ٹیکس لینے کا یہ ہوتا ہے کہ حکومت ہر شہری کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ تمہاری حفاظت ہماری ذمہ ہے. اس کے لیے ٹیکس دیا جاتا ہے حکومتوں کو. جزیہ بھی یہی تھا. میں بات کیا کہہ رہا تھا بیچ میں رہ نہ جائے. خالد بن ولید میں کچھ علاقوں میں جو عیسائی تھے ان سے ٹیکس لے رہے تھے پچھلے 2 سال سے. جو امیر وہاں پر گورنر تھے ان سے کہا ان کا جزیہ مال پورا واپس کر دو, ہم ٹیکس نہیں لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ روم سے لڑائی چل رہی ہے ہماری, اور جو یہ عیسائی ہیں یہ بھی روم کو فالو کرتے ہیں, لہذا ہم ان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے, لہذا ہم ان سے جزیہ نہیں لیں گے, واپس دے دو. جیسے ہی ان صحابہ نے جزیہ واپس دینا شروع کیا, عراق کے کچھ علاقوں میں جو عیسائی رہتے تھے روایت میں موجود ہے سارے کے سارے عیسائی رو رو کر کے دعائیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کی حکومت پھر سے آ جائے, مسلمانوں کی حکومت آ جائے, روم مغلوب ہو جائے. کیونکہ یہ ہمارے جان و مال کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں ہمیں دوسروں سے ڈر لگتا ہے, دوسرا کوئی بھی درندہ آئے گا ہمیں لوٹ لے گا. روایتوں میں موجود ہے وہ عیسائی وہ روم کو فالو کرنے والے مال لے لے کر کے قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہم سے جزیہ لے لو تاکہ ہماری حفاظت کا ذمہ ہو جائے. لیکن صحابہ کا یہ عدل تھا کہ ہم جس بات کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں بس اسی سے لیتے ہیں, اور جہاں نہیں ہوگا اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جائے. یہ سلسلہ تھا. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کو بھی ٹکر دے دی. روم کی جنگوں میں بہت ساری جنگیں ہیں لیکن یہ جنگوں کا سلسلہ فتوحات کا چلتا رہا.
सैयदना खालिद बिन वलीद लड़ते रहे दिनों रात एक कर दिया और उनकी जिंदगी की तारीख की 125 जंगें थी। मेरे अजीजों, खेल के मैदान में इतनी मर्तबा नहीं उतरे होंगे जितनी मर्तबा उन्होंने जंग में उतर करके जौहर दिखाए। और जंग के मैदान में उतरना कोई तमाशा नहीं है और ना ही ये बाजीचे अतफाल है, बच्चों का खेल है। जान हथेली पर लेकर आना है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला 125 जंगें अपनी जिंदगी में लड़े। और हैरत की बात मैं बताऊं, दो खुसूसियात, आपकी दो स्पेशलिटी खुसूसियात ये है, इन 125 जंगों में एक जंग में भी आपको शिकस्त नहीं मिली, एक जंग भी हारे नहीं है 125 जंग। और दूसरी स्पेशलिटी आपकी, दूसरी खुसूसियत हज़रत खालिद बिन वलीद की ये है, बहुत सारे इलाके इस्लाम में आए, आज़रबाईजान तक हज़रत खालिद बिन वलीद की सिपह सालारी में फतह हुआ, आज़रबाईजान तक गया इस्लाम। यहाँ मदीने तैयबा की सरहदों से निकल करके ईरान, इराक, शाम, रोम, अब उसके बाद आज़रबाईजान, आर्मीनिया, आज के दौर में जो यूरोपीय यूनियन में शामिल है, वहां तक इस्लाम फैल गया। वो इलाके मफ्तू हो गए, फतह करके परचम इस्लाम ले रहा है। दूसरी स्पेशलिटी हज़रत खालिद बिन वलीद की जो मैं बता रहा हूँ खुसूसियत, वो क्या है? एक तो ये है 125 जंगों में कभी आपको शिकस्त नहीं हुई। दूसरी खुसूसियत ये है कि जो इलाका खालिद बिन वलीद ने फतह किया था, 14 सदियां गुजर गई, आज तक वो काफिरों के हवाले कभी नहीं गया, कभी नहीं गया। जो इलाका उन्होंने फतह किया था, उस वक्त से लेकर आज तक वो इस्लाम के मातहत ही चल रहा है, इस्लाम के अंडर में। सलाम हो तुरबत खालिद बिन वलीद, करोड़ों रहमतें नाज़िल हो उस सहाबी रसूल पर, जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया था सैफुल्लाह, सैफ मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार का नाम है। हज़रत खालिद बिन वलीद खुद कहते हैं, मैं हर जंग इस नीयत से लड़ता था शहीद हो जाऊं, लेकिन एक जंग में भी शहादत नहीं मिली, एक जंग में भी शहादत नहीं। किसी दूसरे सहाबी ने आपसे कहा आपको शहादत कैसे मिलती है? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने आपको अल्लाह की तलवार कहा। अगर आप शहीद हो जाते तो दुनिया ये ना कहती खालिद बिन वलीद खत्म हो गए, दुनिया ये कहती अल्लाह की तलवार टूट गई, अल्लाह की तलवार टूट गई और अल्लाह ताला की तलवार महफूज रही। खालिद बिन वलीद कहते मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी कहीं बाकी नहीं है जिसमें तीर और तलवार न लगे, कोई जगह जिस्म में बाकी नहीं, जख्मों से भरी हुई, हर जगह जख्म थे, बड़े बड़े घाव थे। एक इलाका खालिद बिन वलीद का दौर जो सुनहरा दौर है हज़रत फारूक आज़म के ज़माने में, हुआ ये कि एक मरतबा ईसाई हज़रत खालिद बिन वलीद से तलवारों से नहीं लड़े, फतह किया है, सुलह से भी लड़े, अखलाक से भी लड़े। और एक मरतबा ईसाइयों के इलाके में गए, ईसाइयों ने कहा हम आपके साथ आने को तैयार हैं, लड़ेंगे नहीं, कोई चीज नहीं होगी, लेकिन हमारा दीन हक है, हमें यकीन है। आप अपने दीन की हक्कानियत को कैसे साबित करेंगे? खालिद बिन वलीद ने कहा बताओ तुम क्या चाहते हो मेरे दीन की हक्कानियत के लिए? ईसाइयों ने कहा हमारे पास एक बहुत सख्त खतीर किस्म का जहर है, हम वो जहर की प्याली लाकर रखेंगे और हम में से भी एक शख्स आएगा, तुम में से भी एक शख्स आएगा, जहर पी करके हम ये ऐलान करेंगे जिसका दीन हक होगा वो जहर पीकर बचेगा। ये मुबाहिला था, ये मुबाहिला है। उस दौर में सैयदना खालिद बिन वलीद के साथ है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, आज दीन की हक्कानियत को उजागर करने का दिन है। तारीख की सच्चाइयां आज भी रिवायत करती है, सैयदना खालिद बिन वलीद गए और जहर का प्याला रखा हुआ था, वो जहर ऐसा था पीना तो दूर की बात है, अगर चमड़ी पर लग जाता तो गोश्त निकल कर आता। चमड़ी पर अगर लगता जहर तो गोश्त के साथ चमड़ी निकल आती थी, इतना सख्त था। खालिद बिन वलीद आके बड़े, ईसाइयों का बड़ा वहां पर पादरी मौजूद था, ईसाइयों की एक जमात है,
मुसलमानों की जमात है। सैयदना खालिद बिन वलीद ने कुछ नहीं देखा, सीधे जाकर उस जहर का प्याला उठाया, कहा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। उस अल्लाह के नाम से पी रहा हूं जिसका नाम पूरे जमीनों आसमानों में है और कोई शय उस नाम को जरर और नुकसान नहीं दे सकती है। वो जहर का प्याला उठाया और पी गए और ईसाई देखते रह गए। ना हलक कटा, ना जुबान कटी, ना जहर से कुछ हुआ, बल्कि आपने जहर का प्याला ऐसे पी करके रखा जैसे कोई पेट भरकर दूध पीता। दूध पी करके कोई अपना गिलास रख देता, इस तरह से आप जहर का प्याला नीचे रखते हैं। ईसाइयों ने कहा ये तो जादू है, ये तो जादू है, नजरबंदी हो गई। तो उस वक्त खालिद बिन वलीद ने कहा पूरा मैंने पिया है, बचा हुआ तुम चख करके दिखाओ, तुम चख करके दिखाओ। ईसाई भाग गए। नहीं, उनको ये था कि सब भाग जाएंगे, लेकिन इस अजीम करामत को देखकर, ये खालिद बिन वलीद की करामतों में से करामत को देखकर कई ईसाई मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, ईमान ले आए, इस्लाम में दाखिल हुए। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस दौर में, दौरे फारूकी में इतने इलाके फतह किए जिनके नाम शुमार करना आज हमारे लिए मुश्किल है। उन्होंने प्रैक्टिकल चल करके फतह किए हैं। आज हैरत है मुसलमानों को, जवानों को, कि कम से कम वो 2-4 इलाके तो याद रखते जिनको उन्होंने फतह किया है, वो भी तुम्हें याद नहीं। तुम क्या याद रखते हो? तुम्हें तो फुटबॉल ग्राउंड याद है, तुम्हें तो वर्ल्ड कप कहाँ होता है, कहाँ है, नहीं है, ये याद रह जाता है। कौन से साल का वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया, ये सब याद रख जाते हो। ये मुजरा करने वाले एक्टरों के डायलॉग याद रख जाते हो। जहन्नमी लोगों के इन तबकात के सारे अफ़आल और किरदार याद रखते हो। उस बतले जलील अजीम बहादुर, इससे बेहतरीन बहादुर पूरी तारीख में कोई नहीं होगा। आज के नौजवानों को चाहिए कि फख्र करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी एक शख्सियत थी, वो खालिद बिन वलीद थी। अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार, उनका नाम लेते, बल्कि मैं तो अपनी तकरीरों में पहले से कहता आया बचपन से, कोई अगर बुज़दिल है तो उस पर 11 बार खालिद बिन वलीद का नाम पढ़ो, शायद बुज़दिली खत्म हो जाए, दिल के अंदर से खौफ निकल जाए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम तुम अपनी तारीख, अपने असलाफ को याद करते। बच्चों को गुड़ी गुड़िया के किस्से, चोर पुलिस के किस्से सुनाने छोड़ दो, खालिद बिन वलीद और सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुनाओ। बच्चे जवान होंगे तो डरपोक नहीं पैदा होंगे इंशाअल्लाह। हम यहाँ पर सीरियल और इनके हाथों में गेम पकड़ा कर बैठे हुए हैं। और मेरे अजीजों, खालिद बिन वलीद की इन फतूहात को सुनने के बाद जरा अपने दामन में झांक करके भी देखना, तुम्हारी जिंदगी में कोई जंग तो आई भी नहीं, वो जंगों में उतर गए थे। हाँ, आज के जवान लड़ते हैं गेम में, बहुत माहिर हैं गेम में, ऐसे लड़ते हैं पता नहीं कितने स्टेचू को सुला देते हैं। और पबजी के तो ऐसे दीवाने रह गए थे कि ऐसा लगता था कि वो जितने उसमें कार्टून आते हैं उनको मारते मरते कब इसकी मौत आने वाली पता नहीं था। इनके दिलों में रच बस गया जैसे बनी इसराइल के दिलों में बछड़े की पूजा रच बस गई। पबजी गेम और पता नहीं कितने ऐसे गेम, इन जवानों ने यही समझ लिया है। अरे नादानों, खाते बहुत ज्यादा हो, दूध भी पीते हो, अखरोट बादाम काजू सब खाते हो, जिम में जाके वर्कआउट करते हो, शर्म करो, तुम्हें अल्लाह ताला ने ताकत गेम खेलने के लिए नहीं दी है, गेम खेलने के लिए नहीं दी है। आज जंग अगरचे नहीं हो रही है, लेकिन इस दौर का पहलवान वो है जो सुबह के वक्त बिस्तर छोड़े और फजर की 2 रकात अदा करे। सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, मेरे नजदीक वो ताकतवर शख्स है, वो ताकतवर शख्स है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी उम्मत जब तक घोड़े की पीठ और फजर की जमात नहीं छोड़ेगी, अल्लाह उस पर किसी भी कौम को गलबा नहीं अता करेगा।
हजरत अल्लामा कभी कोई कौम तुम पर गालिब नहीं आएगी। हाफिज मोहम्मद हजरत खालिद बिन वलीद का ये दौर, लेकिन तारीख की सच्चाइयाँ हैं सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में ये फतूहात हुई। चाहे साद बिन अबी वक्कास अमीर हो, अबू उबैदा बिन जर्राह अमीर हो, या खालिद बिन वलीद अमीर लश्कर हो, कोई भी हो, लेकिन दौर तो फारूक आजम का है। खिलाफत तो उनकी थी। सिपह सालार लड़ा है जंगों में, लेकिन खिलाफत का दौर याद किया जाएगा, क्योंकि उन्हीं की मर्जी से, उन्हीं की मंशा से सब चले जाते। लेकिन मैंने सबसे पहले तकरीर में शुरुआत इस बात पर की थी कि सैयदना उमर फारूक की मिजाज में सख्ती बहुत थी। राय लेने का, फैसला लेने का आपके अंदर ऐसा जज्बा था, वो किसी की रूह रियायत नहीं करते। और इसी सख्ती और सलाबत की वजह से कई सहाबा पर भी इसका असर पड़ा है। हजरत खालिद बिन वलीद जो सिपह सालार थे, नामजद सिपह सालार थे, मुसलमानों के अजीम लश्कर को वो अमीरी किया करते थे। लेकिन एक दौर आया, 17 हिजरी थी, यानी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के तकरीबन 5 साल गुजर चुके थे। उसके बाद सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माजूली का लेटर जारी हो गया, उनको माजूल किया है। इस वाक़े को लेकर मुस्तशरिकीन जो है एक जमात है यहूदियों की, जिनको ओरिएंटलाइज कहा जाता है, ये इस्लाम के मुतालिक बहुत सारे मुताला करते हैं और पढ़ते हैं, हदीस भी पढ़ते हैं, फिक़ह भी, कुरान भी, तफसीर भी, और फिर मुसलमानों में एतराज़ात ढूंढ करके शक पैदा करने के लिए किताबें लिखते हैं और दिमागों में ये चीज़ें पैदा करते हैं, जमातें बनाते हैं। मुस्तशरिकीन ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को उठाते हैं। खालिद बिन वलीद को माजूल कर दिया उमर इब्न खत्ताब, और ये कहते हैं उनके खिलाफत के दौर का ये बहुत ही ऐसा काम था जो पसपाई की तरफ मुसलमानों को ले जाता है, या मुसलमानों में इस चीज़ का ऐसा असर पड़ सकता था जो उनको कमजोर कर दे। ये बातें बहुत उठाते हैं, लेकिन फर्क कुछ नहीं था। उनके मामलात थे, क्योंकि खलीफे वक्त थे और उनकी इताअत जरूरी थी। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुछ मामलात थे। किस बात पर? हालांकि मुशाजरात के मुतालिक बयान नहीं करना चाहिए, ना ही लड़ाइयाँ थी। हजरत खालिद बिन वलीद में हजरत उमर में कोई लड़ाई नहीं। वो उनको खलीफा अजल, खलीफा वक्त और खलीफा बरहक समझते थे, और उनकी इताअत में 5 साल गुजारे। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ये खत आया कि खालिद बिन वलीद को सिपह सालारी से माजूर किया जाए। वजह क्या थी? कई वजूहात बताई जाती हैं, लेकिन जो भी वजूहात रही, सैयदना उमर इब्न खत्ताब के मिजाज में यह था कि वो एक अदना सी भी चीज, कोई ऐसी जो इसराफ हो, जाया हो, उसको बर्दाश्त नहीं करते। हजरत खालिद बिन वलीद का मामला ये था कि वो जंगों में जब जाते थे तो बहुत सारे फैसले उनको खुद लेने पड़ते थे, और बहुत सारी चीजें ऐसी जगह पर खर्च भी करते थे, और वो खलीफे वक्त को उस बात की इत्तला देने के लिए उतने असबाब नहीं मुहैया थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में भी ये चलता रहा, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक उनकी खिदमात की वजह ये सारी चीज़ों की तरफ नज़र नहीं फरमाते, लेकिन हजरत उमर सख्त मिजाज थे। और अदालत फारूकी होता है, पूरी दुनिया जानती। एक बार खबर यह आई कि एक शायर ने, उस वक्त शेर व शायरी का दौर है, एक शायर ने कुछ बहुत अच्छे अशार पढ़े, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने 12,000 दिरहम उसको नजराने में दे दिए। शायर साहब सुनो, बहुत ज्यादा नजराना देना भी खतरे से खाली। खालिद बिन वलीद का यही था, बस 12,000 दिरहम उन्होंने एक शायर को नजराने में दिए, और ये खबर पहुंची हजरत उमर फारूक। हजरत उमर के यहाँ तो मामला ये था, कोई गवर्नर अगर एक तुर्की घोड़ा भी इस्तेमाल करता अच्छे किस्म का, तो उसे उतार देते थे, तुम कल से गवर्नर नहीं हो। आला किस्म का लिबास पहन रहा है, किसी के बारे में ये खबर दी गई। उनके खुद बेटे हजरत आसिम वो गोश्त खा रहे थे, बहुत लजीज गोश्त। हजरत उमर आए, कहा क्या खा रहे हो? कहा बहुत ख्वाहिश हो रही है गोश्त खाने की। जानते हो हजरत उमर क्या कहते हैं? कहा जो ख्वाहिश है वो खा लोगे। आप फरमाते हैं तुम्हें पता है
आदमी जो तबीयत करे, जो चाहे, जब उसकी तमन्ना हो खाने की और वही चीज खा ले, हर बार ऐसा करता रहे, अल्लाह के नजदीक क़यामत के दिन वो चोरों में उठाया जाएगा। हज़रत उमर इतना तकवा वाले थे, अपने बेटे को इस चीज पर वो रोक सकते हो। तो 12,000 दिरहम का नजराना जब यहाँ पता चला तो फौरन आपने कासिद भेजा, खालिद बिन वलीद से पूछो। खत में पहले यही था, ये 12,000 दिरहम कहाँ के थे? ये बैतुल माल के थे जो शायर साहब को तुमने नजराने में दिए, या अपनी जेब के थे? अगर बैतुल माल के थे तो मुसलमानों के माल को जाया किया है। इतना माल किसी शायर को नजराने में यतीमों को दिया जा सकता, या अगर तुम्हारे जेब से गया है ये, तो फिर हिसाब बताओ इतना आया कैसे था? तुम्हारे जेब से था तो आया, और अगर हिसाब है भी तुम्हारे पास 12,000 दिरहम का, तो उमर फारूक कहते हैं इतना माल किसी शेर व शायरी पर खर्च करने को मैं इसराफ समझता हूँ, नाजायज समझता हूँ। और उसके बाद उसी खत में आपने लिखा कि कल से तुमसे पैसा लाख नहीं रहो। ये बात थी सैयदना उमर इब्न खत्ताब की। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास ये खत आया था। हज़रत अबू उबैदा भी जानते थे खालिद बिन वलीद का होना कितना अहम है जंगों में, बहुत अहम था। और ये ऐन उस वक्त आया था जब रोम की लड़ाइयाँ चल रही हैं, रोम फतह होने के करीब है, और फिर यज़दगर्द का मामला खत्म होने को है। तो वो अमीनुल उम्मत थे अबू उबैदा बिन जर्राह, अमीनुल उम्मत। मेरे आका ने फरमाया हर नबी का उम्मती में एक अमीन होता है, मेरी पूरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह है। उनको अमीनुल उम्मत कहा गया, वो अमानतों वाले भी। तो उन्होंने उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये लेटर छुपा लिया, खत रख लिया। अभी खालिद बिन वलीद को दे दूं, माजूल कर लूं, जंगें चल रही हैं, बहुत जगह इनको काम आना है। तो कुछ फतुहात जो बाकी थी वो सारे फतह हो गए। तो अबू उबैदा बिन जर्राह ने वो खत ले जाकर के पहले दिया नहीं, बल्कि पहले वो सवालात किए जो अमीरुल मोमिनीन ने भेजे। कहा कि आपको ये तमाम चीजें बदलनी पड़ेंगी, आप अपनी मर्जी से ये जो खर्चा किया। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा मैं तो सिद्दीक़ अकबर के ज़माने से भी करता आया हूँ। अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा ये फारूक आज़म का ज़माना है, ये सिद्दीक़ अकबर का नहीं, ये उमर इब्न खत्ताब का ज़माना है। फिर उन्होंने खत उनके सामने दिया कि उमर इब्न खत्ताब अमीरुल मोमिनीन का खत आया है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने खत खोल कर देखा, जैसे ही पढ़ा मुस्कुराए और खड़े हुए। अबू उबैदा बिन जर्राह के हाथ चूमे और कहा अब मैं अपनी पूरी बाकी की जितनी जिंदगी है आपकी सिपह सालारी में आम लश्करी बनकर लड़ने को भी फख्र महसूस करूं। ये नहीं है कि परसों से मैं एक ओहदे पर था, मुझे हटाए, सदर साहब को हटाया तो मुंह फुला लिया, हमारी कुर्सी हिल गई, अब सदर के अलावा कोई बनना ही नहीं है हमको। मेरे अजीजों तुम्हें पता नहीं, अल्लाह सदर से हटाकर चपरासी भी बना दे। मौला करीम ये वो कादिर मुतलक है। हमने खुद देखा है मिस्र में, हम जिस हॉस्टल में रहते थे उस हॉस्टल का जो इंचार्ज हुआ करता था बड़े उसके नाज़ो नखरे होते थे, और उसकी साइन के बगैर हमको खाना नहीं मिलता था, उसकी साइन के बगैर रूम नहीं मिलता था, उसके पास जाने के लिए टाइम होते थे 2-3 घंटे के। तो हमने देखा कि उसको जो है मनाने के लिए हम पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलते रहते थे, और कभी साइन करके दिया कभी नहीं दिया। 4-6 महीने के बाद देखा उसको, हमने देखा कि हॉस्टल के दरवाजे पर दरवाजा खोल रहा है, दरवाजा बंद कर रहा है। वहां से इधर सीधे आ गए, कहा कोई बात नहीं, हमारे लिए नॉर्मल है। ये बात मैं मजाक के लिए नहीं कह रहा हूँ, उस आदमी को दरवाजे के पास दरवाजा खोलने बंद करने की ड्यूटी दी गई, तो वो ये कहता है कल तक जो मुझे वहां खिदमत दी गई थी वो भी अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर जो दी गई ये भी अल्लाह का शुक्र है। इस्लाम यही चाहता है, तुम कुर्सियों पर चिपक करके नहीं, अल्लाह करीम जिस मनसब पर तुम्हें बिठाए शुक्र बजा लाओ, शुक्र बजा लाओ। खालिद बिन वलीद को पड़े होते तो समझ में आता, मनसब ओहदे ये सब वक्ती होते हैं, बहुत वक्ती होते हैं, बहुत शॉर्ट लिमिटेड पीरियड के लिए होते हैं।
اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں ہی رہوں گا رستم، میں ہی رہوں گا پہلوان، میں ہی رہوں گا بادشاہ، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے اتار دیے جاتے ہیں، اور ابھی دیکھنا ہوائیں چلیں گی، ملک کے بھی حالات بدل سکتے ہیں۔ جس ترم خان کو یہ سمجھ میں آتا ہے آج کہ میرے علاوہ کوئی نہیں، جگہ جگہ ہورڈنگ بورڈ میرے ہی ہیں، پوسٹر میرے ہی ہیں، فوٹو میرے ہی ہیں، کل کو ہو سکتا ہے کسی نیوز پیپر کے کونے میں بھی نظر نہیں آؤ گے، اللہ کے فیصلے آئیں گے، کبھی کونے میں بھی نہیں نظر آؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، لیکن اس فیصلوں پر عمل کر لینے میں عزت خالد بن ولید کو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن انہوں نے کوئی سرکشی نہیں کی، نہ کوئی بغاوت کی۔ ان کے فتح کیے ہوئے علاقے ایک دو نہیں، سینکڑوں، یعنی 100 سے زیادہ علاقے فتح کیے ہوئے ہیں۔ کتنی جگہ ان کا بنایا ہوا گورنر ہے، کیا کبھی یہ بغاوت کر جاتے؟ نہیں، میں عمر ابن خطاب کی بات نہیں مانتا، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، فوج بھی ہے، فتح کیے ہوئے علاقے بھی ہیں، نہیں، صحبت رسول پائے ہوئے تھے۔ کھڑے ہو گئے، خط کو لے کر چوم لیا، اور ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ کو چوم کر کہتے ہیں آپ امیر لشکر ہیں، آپ سپہ سالار ہیں، میں اپنی بقیہ پوری زندگی آپ کی سپہ سالاری میں عام فوجی کے ساتھ، عام لشکری کی طرح خدمات انجام دینے کو بھی سعادت محسوس کروں گا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا۔ اب میں آپ کو یہ جو بتایا ہوں، ایک بات میں بتا دوں میرے عزیزوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کے معاملات کو سننا ہو تو کسی سنی صحیح العقیدہ سے سنو، کسی چنی سے سنو گے تو پھر وہ ایسے اختلافات بتائے گا کہ تمہارے دل میں لگنے لگے عمر فاروق نے ایسا کیا، خالد بن ولید نے ایسا کیا، علی بن ابی طالب نے ایسا کیا، امیر معاویہ نے ایسا کیا۔ نہیں، اعتدال اور توازن برقرار رکھنا سارے صحابہ کے درمیان یہ امت پر فرض ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے سب کو جو شرف ملا ہے وہ صحبت رسول کا ملا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے کسی بھی صحابی کو گالی نہ دو، کسی بھی صحابی کو برا بھلا نہ کہو، صحابہ میں کسی کے ساتھ بھی ہم برا بھلا کریں گے تو رسول اللہ کو تکلیف ہوگی۔ ہم یہ مد نظر رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کی شرط صحبت انہیں ملی۔